السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ حکومت کی پیٹرول پر سبسڈی کے باعث قومی خزانے کو 67 ارب کا نقصان ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بریفنگ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آج تک نہیں پتا چلا کہ پچھلی حکومت کتنی نااہل تھی. IMF سے پروگرام بحال کرنے کے لیے درمیانی راستہ نکالیں گے. عوام دوست بجٹ دیں گے. وزیر اعظم نے یوریا کی کمی پر کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس. ملک کی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا ڈیزل اور پیٹرول پر گزشتہ حکومت کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سبسڈی دی گئی، جس سے قومی خزانے کو 67 ارب روپے کا نقصان ہوا. قومی خزانے کو ڈیزل پر 25 روپے فی لیٹر اور پیٹرول پر 22 روپے فی لیٹر کا نقصان ہوا. میڈیا بریفنگ میں مریم اورنگزیب نے بتایا شہزاد اکبر کاغذ لہرا کر سیاسی انتقام لیتے تھے. عدالتوں نے تمام الزامات سے ہمیں بری کیا. پہلے ECL کمیٹی سٹاپ لسٹ اور واچ لسٹ میں نام عمران خان کی ہدایت پر ڈالتی تھی. اب اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں شفاف کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. کمیٹی 3 روز میں رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی. ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے اور آپ کو جس طرح پتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو منسٹر فار لا ہیں اس کو چیئر کریں گے، اور اس کے اندر سید نوید قمر صاحب منسٹر فار کامرس ہیں، مسٹر اسد محمود منسٹر فار کمیونیکیشن، سردار ایاز صادق جو ابھی ان کا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ ہونا ہے، آج اس کی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی، وہ اس کے اندر موجود ہیں جو اس کے رول ٹرمز آف ریفرنس بن گئے ہیں. مفتاح اسماعیل نے بتایا کم سے کم اجرت 25,000 روپے کی قانون سازی ہو چکی. 10% تنخواہ میں اضافے کی بات پر بھی عمل ہو چکا. جب تک IMF کے پاس جاتے رہیں گے اس وقت تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. میں تو سچ بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم IMF کے پاس جاتے رہیں گے یا جب تک ہم دوسرے ممالک سے قرضہ لیتے رہیں گے یا امداد مانگتے رہیں گے، ہم کبھی بھی اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو سکیں گے نہ کبھی ترقی کر سکیں گے. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. وفاقی کابینہ نے سردار اظہر رائے کو DG FIA تعینات کرنے کی بھی منظوری دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 3.5 سال میں کرپشن عروج پر رہی. پچھلی حکومت مشکلات پر قابو پانے میں بری طرح ناکام رہی. معیشت کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانا ہوگا. امید ہے باہمی مشاورت سے چیلنجز پر قابو پا لیں گے. قوم کی ایک ایک پائی بچانی ہے. کرپشن جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جو کہ عروج پر تھی اس کو ختم کرنا ہے. میں اس کو ایک قسم کی وار کیبنٹ سمجھتا ہوں، بیکاز وی آر فائٹنگ اگینسٹ پاورٹی، انمپلائمنٹ، انفلیشن. یہ جنگ ہے ان تمام مشکلات کے خلاف جو کہ پچھلی حکومت نے اس میں بری طرح وہ ناکام رہی. یہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو اب کنارے لگانا ہے. وفاق کی جو 4 اکائیاں ہیں اور خاص طور پر صوبہ بلوچستان، وہاں پر کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، ان کے اوپر بڑی بھرپور توجہ دینی ہوگی. ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا زور پورا استعمال کرنا ہوگا. جو پاکستان کے 4 صوبوں سے جو عوام آپ سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پانسا بدل دیں. گزشتہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا. کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ کوشش ہے عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس میں خط لہرا دیا. کہا یہ خط عمران خان کی نااہلی اور بدعنوانی کا ثبوت ہے. اب مہنگائی کی شرح 12% سے زائد ہے. عمران خان نے صرف نواز شریف کے منصوبے پر اپنی تختیاں لگائیں. حکومت جو ہے جتنے اتحادی ہیں حکومت کے اندر، کابینہ کے اندر، ان سب کی اولین ترجیح ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے جو مہنگائی ہے، جو ایک مہنگائی کا عذاب جس میں 4 سال پچھلی حکومت نے پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، کس طرح ایسے اقدامات کیا جائیں، کچھ فوری ریلیف دیے جائیں جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک سکون کا سانس لے سکے. یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور PTI نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ. مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے. خان صاحب نے
20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है 4.25 साल में, और फिर भाषण भी देते हैं कि कर्ज कम होना चाहिए। खान साहब 5,500 अरब रुपया औसतन कर्ज ले रहे हैं और मैं नहीं जानता कि उन्होंने एक ईंट भी लगाई है। सिर्फ उनका खर्चा तख्तियों पे हुआ है, जो नवाज शरीफ की तख्ती निकाली है और इमरान खान ने तख्ती डाली है, जो शहबाज शरीफ की तख्ती निकाली है और बुज़दार साहब ने तख्तियां डाली हैं। इमरान खान के तहाइफ की तफसीलात आम की जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक हद तक पैसे देकर तोहफे रख लेना कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉलिसी बनाएं, जो भी तोहफा आएगा वो कौमी खजाने में जमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा हुक्म, साबिक वजीर आजम इमरान खान के तहाइफ की तफसीलात आम करने की हिदायत। शहरी की पटिशन पर दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और डिप्टी अटॉर्नी जनरल में मुकालमा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं, एक पॉलिसी बनाएं, जो भी तोहफा आएगा वो खजाने में जमा होगा। तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं, वापस दिए भी जाते हैं। बैरून मुल्क जो तहाइफ जाते हैं वो कौमी खजाने से खरीदे जाते हैं। जस्टिस मियां गुल ने कहा, बाहर से आए तहाइफ भी नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, ताज़ा हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने कहा, आप हिदायत लें, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें और शहरी को तहाइफ की मालूमात दे दें। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आम करने का हुक्म। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं, तोशाखाना पर ऐसे इक़दाम शर्म की बात है, कोई गैरतमंद शख्स ऐसी हरकत करने का मुर्तकिब नहीं हो सकता। अरकान पार्लियामेंट की राय क्या है, आपको दिखाते हैं। स्टेट किसी को गिफ्ट दे और वो गिफ्ट जो है इस्तेमाल करने के लिए, पहली चीज तो ये कि वो स्टेट के म्यूजियम में पड़ी रहनी चाहिए, jaiसे सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। मगर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं 50% दे के लेता हूं, तो वो यूज करे। ये तो एक अमानत है, और जहाँ पे रियासत मदीना का इतना वावेला किया जा रहा था, और अगर अमानत में खयानत हो तो डेफिनेटली न सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इखलाकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, और आवाम के नजर में भी जो उनको हम देखते हैं कि किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। तोशा खानों का कानून ये है कि आप तोहफे अपने लिए तो ले सकते हो, मगर आप उसको बेच नहीं सकते हो। एंटीक तो बिल्कुल नहीं बेच सकते हो। तो इमरान याजी ने तोशा खाना को एक धंधा बना लिए, कारोबार बना लिए, वहां से चीजें सस्ता दाम में लेके और मार्केट में बेच देते हो। डेफिनेटली एक काबिल इतराज बात है कि आप एक कंसेशनल रेट के ऊपर तोहफा जो है हुकूमत से खरीद के बाजार में उसको महंगे दामों बेच दिया जाए। मेरा ख्याल है ये गैर कानूनी भी है और गैर इखलाकी भी है। तो तोशा खाना का ठीक है, वजीर आजम का राइट होता है कि वो तोहफे अपने पास रखता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो बाजार में जाके मजीद महंगा करके जो है उनको भेजे और बिजनेस बनाए। तो ये ना सिर्फ हमारी आवाम की तौहीन है, हमारे पाकिस्तान की तौहीन है। हकायक तो सामने आएंगे, जो चीजें हैं वो तो सामने आनी है। और तोशा खाना कोई मियाँ जी का, अबू जी का खजाना नहीं होता, ये हुकूमती चीज होती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत, कौम को जवाब दें। जलसों में एब्सोल्युटली नॉट के नारों से कौम को भड़काने वाले ने अमरीकियों से मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कहा। राना सनाउल्लाह खान ने बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला वजारत का चार्ज संभाल लिया। वजारत दाखिला और इससे ज़ैली महकमों से मुतल्लिक ब्रीफिंग इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोगर ने वज़ीर दाखिला को वजारत और मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से सवालात करते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत, कौम को जवाब दें। अमरीकी रुकने कांग्रेस एलियान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई, कौम जानना चाहती है। दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन से अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला अपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहा है, कौन सी साजिश तैयार हो रही है। अगर आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा। कौम को सच्चाई का पता चलना चाहिए। ये ना हो इमरान नियाजी अपनी रवायात के मुताबिक चंद दिनों बाद एक और खत सामने ले आए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि कौम को अमेरिका के खिलाफ भड़काने वाला आज अमरीकियों से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जलसों में एब्सोल्युटली नॉट के नारों से कौम को भड़काने वाले ने अमरीकियों से मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कहा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, इन लोगों को गलत फहमी है कि ये इमरान खान को नाअहल कर सकते हैं। अदलिया से मुतालिक एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा, जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता।
लोगों की गलतफहमी है कि पीटीआई को या इमरान खान को कोई डिस्क्वालीफाई कर सकता है और वो बैन कर सकता है। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन और कानून है उसी के मुताबिक आगे चलने दें, पाकिस्तान में इलेक्शन होने दें, लोगों को अपना फैसला देने दें। इमरान खान ने अभी तक अपने जलसे जुलूसों में, अपने बातों में इंतहाई जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। आप पाकिस्तान के अवाम की सोच से मुख्तलिफ सोच लेके मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क अवाम की ख्वाहिशों पे चलता है और इसीलिए हम क्या करें, हम करें इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं इलेक्शन हम नवंबर के बाद कराएंगे। मुझे नहीं पता नवंबर में क्यों इतना प्रॉब्लम है कि नवंबर के बाद कराएंगे। दिल तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। मेरी किताब का इंतजार करें। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब के होते मुल्क नहीं चल सकता। ये फैसला करना होगा कि नैब को चलाना है या मुल्क को। नैब खत्म करने का ज्यादा फायदा इमरान खान और टोले को होगा। हुकूमत किसी पर इल्जाम लगाएगी न जेल में डालेगी। आज हुकूमत के पास एक बड़ा फैसला है, नैब को खत्म करना है या रखना है। नैब को चलाएं या हुकूमत चलाएं, ये फैसला आज हम सब ने करना है। आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा है। और आज नैब खत्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगी। इल्जाम ये लगेगा कि ये अपने केस खत्म करवाना चाहते हैं। इसका हल क्या है? हल यही है कि अब नैब को खत्म करें, अपोजिशन का केस रहने दें। हम किसी पर बेजा इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम किसी को जेलों में नहीं डालेंगे। ये बदनसीबी है कि आज आरिफ अलवी साहब भी आइन को भूल गए हैं। आइन पढ़ लें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वो इमरान खान के सदर नहीं है, वो पाकिस्तान के आईनी सदर हैं। सदर सिर्फ जो वफाकी हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस पर ऑर्डर जारी करता है। मुस्तफा कमाल का कहना है कि आपका हिसाब हो रहा है तो कह रहे हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। मुस्तफा कमाल की इमरान खान पर तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत धांधली से बनाई गई। आपका हिसाब किताब खुल रहा है तो अब आप कह रहे हैं कि जी मेरा तोशा खाना मेरी मर्जी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। 3 साल पौने 4 सालों से उस नैब के चेयरमैन से अपने केसेस माफ करवा रहे हो, दूसरों के ऊपर केसेस बना रहे हो। इसको आप रियासत मदीना कहते हो? ये अमर बिल मारूफ है। मैं तो हैरान हूं इस मुल्क के आलिमों के ऊपर कि वो इतनी आसानी से जिसको जो चाहे जो तशरीह कर रहा है, अपनी मर्जी की तशरीहात कर रहा है और उसको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। हमारे आबा अजदाद ने ये कुर्बानियां देकर ये मुल्क बनाया और संवारा नहीं है। इसमें लाखों लोगों के का खून शामिल है। इसको हम आपके लिए ये टेस्ट ट्यूब नहीं बना सकते, ये कोई आपके लिए तजुर्बागार नहीं बना सकते। 2018 के जो इलेक्शन थे वो रिग्ड इलेक्शन थे, वो जाली इलेक्शन थे और धांधली के नतीजे में डेफिनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट का वजूद जो है आया है इस पाकिस्तान में। यही जरदारी और नवाज शरीफ 3 साल पहले बैठ जाते, हुकूमत खत्म हो जाती। तो चूंकि पीपल्स पार्टी को अपनी हुकूमत चलानी थी, यहाँ पर ये ड्रामा सारा चल रहा था।